بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو شب برات کے بارے میں بہت ہی خاص ویڈیو ہونے والی ہے۔ پیارے دوستو، شب برات کی ایک رات ایسی ہے جس رات میں انسانوں کی زندگیوں کے بارے میں بہت ہی امپورٹنٹ فیصلے کیے جائیں گے، جیسے کہ کون جیے گا اور کون مرے گا، اور کون اس دنیا میں اپنی نئی زندگی کی شروعات کرے گا، کون اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کو الوداع کہے گا، کون غریب سے امیر بن جائے گا، اور کس کی زندگی میں آفت شروع ہونے والی ہے، اور کن لوگوں کے نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھ دیے جائیں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے، اور اس رات میں کیوں نامۂ اعمال بدل دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں انسان کے بارے میں کون سے خاص فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارا نام بھی اگر مردہ لسٹوں کی لوگوں میں لکھ دیا چکا ہو تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ اس رات کتنے لوگوں کو مغفرت مل جاتی ہے، یعنی کہ چھٹکارا مل جاتا ہے، اور اس رات کون سے وہ بد نصیب لوگ ہیں جس کی مغفرت نہیں کی جاتی، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رات میں کون سے کام کو کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو ضرورت کے حساب سے مسلمانوں کو اس شب برات کا رات کس طرح سے گزارنا چاہیے۔ پیارے دوستو، ان سارے سوالوں کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کا مطلب رات ہے، اور برات کا مطلب ہوتا ہے بری ہونا، کیونکہ اس رات مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر کے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی گناہوں کو چھوڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کے صدقے سے سبھی جہنمیوں کو جہنم سے نجات دے دے گا۔ اسی لیے اسی رات کو شب برات کہتے ہیں۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان مہینے کی 15ویں رات سب سے افضل رات ہے۔ پیارے دوستو، آپ لوگوں کو بتاتے چلے کہ شب برات فرشتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کا دن فرما دیا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر رہنے والی انسانوں کے لیے 2 عیدیں فرمائی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان والوں کے لیے بھی 2 عیدیں طے کر رکھا ہے۔ ایک ہے شب برات اور دوسری ہے شب قدر۔ انسان یہ دونوں عیدیں دن کو مناتے ہیں، جبکہ فرشتے یہ دونوں عیدیں رات کو مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے ان 2 راتوں کو عید اسی لیے طے کیا ہے کیونکہ انسان رات کو سو جاتا ہے، جبکہ فرشتے رات کو نہیں سوتے، اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، شب برات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یعنی ایکسپلین میں مفسر لکھتے ہیں کہ اس سب کا مطلب شب قدر یا شب برات ہے، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر مبارکہ کا مطلب ہی شب برات ہے۔ پیارے دوستو، اس رات کے اندر ان تمام لوگوں کی فہرست یعنی لسٹ تیار کی جاتی ہے جو اس دنیا کے اندر زندہ رہنے والے ہوں گے، اور جو اس سال کے اندر مرنے والے ہوں گے، اور جو حج کرنے والے ہوں گے۔ ان تمام لوگوں کے نام اس لسٹ میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس لسٹ میں دیے جانے والے نام کو ماننے میں ذرہ برابر بھی غلطی نہیں کی جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کیا تم جانتی ہو
کہ सावन की 15वीं शब में क्या होता है। फिर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ही बता दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आने वाले साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो सब इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जो लोग आने वाले साल में मरने वाले होते हैं उन सब का नाम भी इस लिस्ट में लिख दिए जाते हैं। और इस रात में लोगों के साल भर की अमाल उठाए जाते हैं, और इस रात लोगों का रिज्क तय किया जाता है और रिज्क उतारा जाता है। हजरत अता बिन सार रज़ियल्लाहु अन्हु बयां फरमाते हैं कि सावन की 15वीं रात अल्लाह तबारक व तआला हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को एक फहरिस्त यानी लिस्ट देकर बयां फरमाता है कि जिन जिन लोगों की नाम इस लिस्ट में दिया गया है उन सब लोगों को उसके तय किए गए वक्त पर उन सब का रूह कब्ज करना है। प्यारे दोस्तों, इस रात में लोगों का मौत का और जिंदगी का फैसला हो चुका होता है, जबकि लोगों की हालात ये होते हैं कि वो अपनी दुनिया में मगन होते हैं। कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने की चक्कर में लगा होता है और कोई अपना कोठी बनाने की तादाद में लगे रहते हैं, तो कोई अपनी शादी की तैयारी में लगा हुआ होता है, जबकि वो नहीं जानता कि उसका नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका है। हजरत उस्मान बिन अहमद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि सरफरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक सावन से दूसरे सावन तक लोगों की ख़त्म करने की ज़िंदगी का लिस्ट लिखा दिया जाता है। यहाँ तक कि इंसान शादी करते हैं और उसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि उसका नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका होता है। प्यारे दोस्तों, शब बारात की एक बहुत बड़ी खासियत ये भी है कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार लोगों की बख्शिश अता फरमाते हैं, जैसे कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयां फरमाती है कि एक रात में हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैं अपने पास ना पाया, तो मैंने आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली, तो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में खड़े हुए हैं, और आपने फरमाया कि क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारा अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे साथ ज़्यादती करेंगे। मैंने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे ख्याल हुआ कि आप शायद किसी दूसरे बीबी के पास तशरीफ़ ले गए हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व तआला इस सावन की रात आसमान में अपने शान के मुताबिक जलवागर होते हैं, और कबीला बनु कल्ब की बकरिया की बालों से भी ज़्यादा लोगों छुटकारा यानी मगफिरत दे देते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सावन की 15वीं शब में अल्लाह तबारक व तआला आसमानों की दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होते हैं, और इस रात में हर किसी की मगफिरत फरमा देते हैं, सिवाय उन लोगों के जो शिर्क करने वाले में से हो और बुग़्ज़ रखने वाले हो। और एक दूसरी रिवायत में आते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला सावन की 15वीं शब में अपनी रहम और करम से तमाम मखलूक़ात की बख्शिश फरमा देते हैं, सिवाय उन लोगों के जो जीना करने वाले हो, सिवाय उन लोगों के जो शिर्क करने वाले हो और कीना करने वाले हो। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सावन की 15वीं रात में अल्लाह तबारक व तआला अपने रहमत की मदद से दो लोगों के अलावा सबकी मदद फरमा देते हैं। एक वो इंसान जो कीना रखने वाला हो, और एक वो इंसान जो दूसरे को नाहक कत्ल करने वाला हो।
प्यारे दोस्तों, शब बारात में फरिश्तों को कुछ काम दिए जाते हैं और शब बारात एक ऐसी रात है जिस रात में अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की मगफिरत फरमा देते हैं और दुआओं को कबूल करता है। जैसे कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब सावन की 15वीं रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान होता है कि हे कोई मगफिरत मांगने वाला कि उसका गुनाह बख्श दूं, हे कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं। उस रात अल्लाह तबारक व तआला से जो कुछ भी मांगा जाए वो सब अल्लाह तबारक व तआला अता कर देता है। वो उस रात सबके दुआओं को कबूल फरमाता है सिवाय बदकर औरत और मुशरिक इंसान के। प्यारे दोस्तों, शब बारात और 15 सावन क्या है? सब हिंदी में कहते हैं रात को, और बारात का मतलब होता है बरी होना, यानी आजाद होना, यानी गुनाह से माफ़ी पा लेना। और अरबी महीने की 15वीं सावन ये रात होती है, इसको ही शब बारात कहते हैं। इस रात की इतनी बरकत होती है कि कोई बंदा अगर अल्लाह तबारक व तआला से इस रात में माफ़ी मांगते हुए दुआ करे तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही जल्द गुनाहों को माफ़ कर देगा। फजीलत वाली रातें कौन कौन सी है ये भी हमें पता होनी चाहिए। नंबर 1, लैलतुल कद्र, जो रमजान की आखिरी आसरे में होती है। नंबर 2, ईद उल फित्र की रात। नंबर 3, ईद उल अजहा, ईद कुर्बानी की रात। नंबर 4, 15 सावन की रात यानी शब बारात। इस रात की क्या खासियत है? जैसे पूरे साल की बजट सरकार पेश करती है कि पूरे साल क्या होगा, उसी तरह उस रात में आने वाले साल का तमाम कामों का लेखा जोखा फरिश्तों को दे देता है। जैसे लोगों की जिंदगी और मौत वगैरह की फासले। क्या प्यारे दोस्तों, इस रात में कोई खास इबादत है? तो आंसर आता है नहीं, इस रात में कोई खास इबादत नहीं है जो सुन्नत से साबित हो, लेकिन हाँ, नफली इबादत कोई भी कर सकता है। जैसे नफल नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करना और दुआ करना। क्योंकि ये रात एक बख्शिश की रात है, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला से अपनी गुनाहों की माफ़ी इस रात में ज़रूर मांगनी चाहिए। दोस्तों, क्या इस रात में सलातुत तस्बीह पढ़ना ज़रूरी है? तो इसका जवाब है नहीं। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि इस रात में कोई खास इबादत नहीं है, लेकिन आप नफल इबादत कर सकते हैं। जहाँ तक कि सलातुत तस्बीह की बात करें तो ये नमाज नफल है और बहुत ही फजीलतपूर्ण है। आप चाहे तो पढ़ लें, और इस नमाज की इसी रात में नहीं बल्कि हर साल में कई बार पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये नमाज बहुत ही फजीलत वाली है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या सलातुत तस्बीह की नमाज जमात के साथ पढ़ी जा सकती है? तो इसका जवाब है नहीं, नफल नमाज जमात में नहीं पढ़ी जा सकती, बल्कि इसे अलग अलग अपने अपने तौर पर पढ़ें। इस रात में इबादत मस्जिद में करनी चाहिए या अपने घर में करनी चाहिए? तो इसका जवाब हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। मतलब ये है कि फर्ज नमाजों के अलावा नफल सुन्नतों और जिक्र से अपने घर को मुनव्वर और रोशन करो। और इस रात में इबादत नफली है तो ये अगर घर में की जाए तो ये बहुत ही बेहतर है, क्योंकि नफली इबादत के लिए लोगों को इकट्ठा करना ठीक नहीं है। अपने तौर पर जितना हो कर सके। पर याद रखे दोस्तों, इस रात में कोई ऐसा काम ना करे कि जिसके वजह से आपकी नमाए अमाल में गुनाह लिखा जाए, जिससे आपसे अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो जाए, और कोई ऐसा फैसला ना कर दिया जाए आपके हक में जो आपके लिए बेहतर ना हो। तो खुदा के वास्ते कोई ऐसा काम ना करे जिसके वजह से अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाराज हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने तक ही ना रखें, अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें।
ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔